Hello everyone. Today we will discuss next unit, producer behavior. In this chapter we read what is production function and its relations. Those who are new on my YouTube channel, please like and subscribe it to get my latest video. Let's start from the concept. Producer behavior. Suppose we want to produce goods X. To produce goods X, we need two type of inputs: factor input and non-factor input. Factor input means land, labor, capital, and entrepreneurship. And non-factor input means raw materials. In this chapter, we read about factor input. Production. What is production? It is a process in which input convert into output. We can say that input convert into output. Sugar can convert into sugar. Cotton convert into thread. Thread convert into cloth. That is called a production. What is the meaning of production function? It is a functional relationship between physical input and physical output is called a production function. In another form, we can say that it is a technical relationship between input to output. यानी कि क्या कह सकते हैं कि जो हमारे इनपुट्स हैं, फैक्टर इनपुट्स हैं, उनकी हेल्प से जो हम प्रोडक्शन करेंगे उनके रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे. लाइक इन इक्वेशंस वी कैन चेक quantity of goods x is depend on function of L and K. L mean labor, K mean capital. There are two type of factor here, L labor and K capital. One is fixed factor, another is a variable factor. Fixed factor means the factor whose quantity remain fixed with the level of output like capital. Means क्या है, जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं. लाइक हमें अभी प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ऑन द स्पॉट हम मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते. बिल्डिंग के स्केल को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते. तो ये क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर होता है. फिक्स फैक्टर इज दैट फैक्टर विच कैन नेवर चेंज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेरिएबल फैक्टर मीन्स is that factor which can change in short period of time. लाइक मेरे को मशीनरी पर ज़्यादा व्यक्ति की ज़रूरत है तो मैं वन मोर लेबर को ऐड कर सकता हूँ, उससे प्रोडक्शन को राइज कर सकता हूँ, मशीन की कैपेसिटी को मैं राइज कर सकता हूँ. दोज इनपुट विच चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट लाइक लेबर. तो हेयर वी डिस्कस टू टाइप ऑफ फैक्टर, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस we analyze production function in the form of constant proportion and variable proportion. Let's start from next slide. Production function we already discussed. Production function means it is a functional relationship between physical input and physical output. Here production function are divided into two parts. One is constant proportion of production function and second is variable proportion of production function. Let's start from first, constant proportion of production function. It is a long term concept. This means कि जो constant proportion है वो concept long term में implement होता है. क्यों होता है? क्योंकि output increase और decrease when all factors change in same proportion. जब सभी फैक्टरों को हम सेम रेशियो में चेंज करके आउटपुट को कम या अधिक कर सकते हैं तो उससे क्या होता है, स्केल चेंज हो जाता है. स्मॉल मशीन है उसकी जगह नई प्लेस हो जाएगी, एक बिल्डिंग है तो डबल बिल्डिंग हो जाएगी. तो मीन्स हम पूरा स्केल को चेंज कर सकते हैं. उसके अंदर कोई भी फैक्टर क्या है, फिक्स्ड नहीं है. ऑल फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल्स हैं. ऑल फैक्टर प्रोडक्शन इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू नीड. मेरे को स्केल को बड़ा करना है तो मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा करना है तो मैं छोटा कर सकता हूँ. लेट्स एग्जाम्पल, लेबर कैपिटल इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट.
तो 100% करनी है मुझे, तो 2 लेबर यूज़ कर रहा हूँ, 1 कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है, मेरे को 200 प्रोडक्शन करनी है, तो लेबर को मैंने डबल कर दिया है, 2 से 4 कर दिया है, कैपिटल को मैंने 1 से 2 कर दिया है, लेकिन रेशो क्या रहा, 2:1 का सेम रहा। ठीक है ना। उसी तरह का लेबर प्रोडक्शन मैंने 300 करनी है, लेबर को मैंने 4 से 6 कर दिया, कैपिटल को मैंने 2 से 3 कर दिया। रेशो सभी का, तीनों का रेशो क्या है, 2:1 आ रहा है। क्या मतलब, प्रोडक्शन इंक्रीज है बट ऑल फैक्टर चेंज इन सेम प्रोपोर्शन है। इसको हम डायग्राम में भी समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या है, लेबर है, वाई एक्सिस पर क्या है, कैपिटल है। ये क्या है, आउटपुट क्या है, पाथ है। अगर हम क्या है, सपोज करो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एंड लेबर दोनों को ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रोडक्शन बढ़ रही है और हम क्या है, कैपिटल और लेबर दोनों को ही क्या है, राइज कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन क्या है, तेजी से बढ़ रही है। इट इज़ नोन एज ए रिटर्न टू स्केल। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न टू स्केल के नाम से भी जानते हैं। इसके भी आगे 3 पार्ट हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन का सेकंड पार्ट, वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उसको हमने ऑलरेडी पीछे रीड किया हुआ। वेरिएबल मतलब कि जो रेशो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो क्या है, चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कैपिटल को शॉर्ट टर्म में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेबर को हम लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो इट इज़ ए शॉर्ट टर्म कंसेप्ट। तो जो वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका रिलेशन शॉर्ट टर्म से है। आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन वन फैक्टर इज वेरिएबल, अदर फैक्टर रिमेन सेम। इसको हम बेटर एग्जांपल में समझ सकते हैं। क्वांटिटी 100 है, लेबर 2, कैपिटल 1 है। फिर प्रोडक्शन हमने 150 करनी है, तो लेबर को हमने 2 से 3 कर दिया, लेकिन कैपिटल रिमेन सेम। वो कैपिटल को हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से अगर रेशियो क्या है, चेंज हो गया, पहले 2:1 का रेशियो था, फिर 3:1 का रेशियो हो गया, फिर क्या है, 4:1 का रेशियो हो गया। इस तरह से रेशियो क्या है, चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, प्रोडक्शन को राइज करना है, तो कैपिटल क्या है, सेम है, लेकिन लेबर क्या है, बढ़ती जा रही है। लेबर क्या है, बढ़ती जा रही है। किसके लिए, प्रोडक्शन को राइज करें। पहले 100 प्रोडक्शन किया हमने, फिर 150 किया, फिर उसके बाद क्या हमने 200 किया। तो इस तरह से क्या है, प्रोडक्शन राइज हो रही है ओनली विद चेंज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर रिमेन सेम। इट इज़ नोन एज ए रिटर्न टू फैक्टर। इसको हम रिटर्न टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके भी 3 पार्ट हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक, concept of production. Concept of production means there are 3 basic concepts: total production, marginal production and average production. Total production means it is a sum of total output produced by firms with factor of production. यानी कि एक फर्म क्या है, वन वेरिएबल फैक्टर और अदर फिक्स फैक्टर से जो गिवन टाइम के अंदर प्रोडक्शन करती है, उसके जोड़ को टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय फर्म विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ए टोटल प्रोडक्शन। टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी मीन्स सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, या फिर इसका सेकंड फॉर्मूला है एवरेज प्रोडक्शन मल्टीपल बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर। मार्जिनल प्रोडक्शन मीन्स चेंज इन आउटपुट ड्यू टू यूज एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मीन क्या हुआ कि जैसे जैसे हम क्या वन वेरिएबल फैक्टर को यूज करेंगे, टोटल प्रोडक्शन के अंदर चेंजिंग आएगी, उसे मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। इसका फॉर्मूला है TPN माइनस TPN माइनस 1। एवरेज प्रोडक्शन मीन्स पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सपोज टोटल प्रोडक्शन हुई है 100 और उसको प्रोड्यूस करने के लिए लेबर लगी है 10, तो 1 कितने हिस्से में आ गई, 10 आ गई ना, तो ये क्या होगा एवरेज प्रोडक्शन। TP डिवाइड बाय L, यानी कि TP डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। नेक्स्ट इज
रिलेशन ऑफ टीपी एंड एमपी, जो हमने पीछे पढ़ा उसको हम रिलेशन में देखते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ये मोस्टली क्या है एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ये हमने क्या रिलेशन को शो करना है, हमें यहाँ पर क्या कैपिटल ले ली शॉर्ट रन के अंदर, वो फिक्स है 1 1 1, एल लिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अब टीपी क्या, इसको थोड़ा लर्न करना है आपने। जो 1 कैपिटल 1 लेवर यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन हो रही है 2, जब 1 कैपिटल 2 लेवर यूज करते हैं प्रोडक्शन राइज होगी 2 से 5, फिर क्या होगा 9, फिर 12 14 15 एंड 14। अब यहाँ से टीपी से एमपी निकाल सकते हैं, हमारे हमने पीछे पढ़ा हुआ है एमपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। हमने पीछे पढ़ा हुआ है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। अब देखो एन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टीपी 1 माइनस टीपी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 2 में से 0 जाएंगे 2 आ जाएगा एमपी में, फिर 5 में से 2 लेस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 9 में से 5 लेस करेंगे 4 आ जाएगा, 12 में 9 राइज करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 14 में से 12 राइज करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 15 में से 14 लेस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 14 में से 1 लेस करेंगे माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से क्या है हम एमपी से टीपी भी निकाल सकते हैं। 2 टीपी 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 1 माइनस 1 14। यहाँ से एपी भी निकाल सकते हैं। टीपी को डिवाइड कर दो एल से, 2 डिवाइड बाई 1 2, 5 डिवाइड बाई 2 2.5। इस तरह से हम क्या ये, अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर 3 स्टेजेस क्रिएट हो रही हैं। 3 स्टेजेस क्या है क्रिएट हो रही हैं। फर्स्ट स्टेज तो क्या है जहाँ पर एमपी क्या है मैक्सिमम है, एक स्टेज तो यहाँ कंप्लीट होगी हमारी। दूसरी स्टेज क्या है जब क्या है एमपी क्या है हमारी 0 हो जाती है, हमें 0 दिखाई नहीं गई है, वो बाय मिस्टेक रह गई है, यहाँ इसके बाद आएगी, इसके बाद आएगी, ये स्टेज क्या है 0 वाली आ जाएगी। इसके बाद इसको आगे कर देंगे चेंज, तो इसके बाद एक नीचे आएगा, इसके अंदर आप 7 की जगह आप क्या कर दो, यहाँ मैं 15 कर देता हूँ, मैंने यहाँ 15 कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगी 15 माइनस 15 ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने 8 ले ली, 8 पे मैंने क्या ले लिया 14 ले लिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा फिर, ठीक है जी। इस तरह से कर लेना, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ डायग्राम में देखो, अब डायग्राम में 2 डायग्राम है, नीचे वाला डायग्राम मार्जिनल प्रोडक्शन यूज़ कर रहा है, तीसरा क्या है ऊपर वाला डायग्राम है टोटल प्रोडक्शन यूज़ कर रहा है। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है एमपी क्या राइज हो रही है, एमपी राइज, व्हेन एमपी राइज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। एमपी क्या है जब राइज हो रही है तो टीपी क्या है तेजी से बढ़ रही है, तो मीन्स व्हेन एमपी राइज टीपी राइज एट राइजिंग रेट। और जो पॉइंट एन है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स मीन्स जिस पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट आएगा, वो टर्निंग पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स है। अब एन के बाद एमपी क्या एम पर फॉल होना शुरू हो गई है, सेकेंड स्टेज के अंदर एमपी फॉल, टीपी इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट। टीपी बढ़ तो रही है लेकिन उसकी बढ़ने की रेट क्या है डिमिनिशिंग है। फिर एमपी क्या है 0 हो गई है, आर पर टीपी क्या हो गई है मैक्सिमम हो गई है। व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट फॉलिंग। तो एज इट ही हमारे शेड्यूल के अंदर है और एज इट ही यहाँ पर है। अब यहाँ ध्यान से देखो फर्स्ट स्टेज क्या है इंक्रीजिंग टर्न है। क्यों इंक्रीजिंग टर्न है, क्योंकि जब एमपी राइज होगी टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है क्योंकि सोर्सेज क्या है अंडर यूटिलाइज है। तो जैसे जैसे लेबर को पुट करेंगे तो सोर्सेज का फुल यूटिलाइज होगा तो प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ेगी। इस कारण से क्या है फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज डिमिनिशिंग क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे सोर्सेज का फुल यूटिलाइज होगा तो एमपी फॉल होना शुरू हो जाएगी और टीपी के बढ़ने की दर क्या है कम हो जाएगी। इस कारण से बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि टीपी गिर गई है, नो, एमपी फॉल हुई है, टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। इसी स्टेज के अंदर क्या है जब एमपी 0 हो जाएगी टीपी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। जितनी भी फर्म्स हैं मार्केट के अंदर वो सेकंड स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करना चाहेंगी, ना तो फर्स्ट में जाएंगी ना ही वो थर्ड में जाएंगी। थर्ड मतलब एमपी नेगेटिव टीपी स्टार्ट फॉलिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। The total that is clear in your PPT. MP rise, TP rise at rising rate, MP fall, TP rise at diminishing rate. You can read it, check it. If you have any problem, you can discuss with me
डायरेक्टली टू कोल।